Hey everybody, welcome back to our channel. So today's topic we'll be talking about why you should not show basic kindness and courtesy towards boys. Why you shouldn't and how you will pay huge amount of your kindness for your kindness. Why I'm using off. I get really nervous talking to the camera. Okay, forgive about that. So the story begins from when I was in class ninth. So when I was in class ninth, after the lockdown and everything, when the school got open, we had to change our school bus because of some reasons. So we had to change our school bus. So the new school bus in which I was going, there was this boy, and I met him in ninth. And if you know that I am biggest introvert kind of idiot. I don't talk to anybody, and especially boys. I keep a lot of distance from them. I am really distant from them. I don't like that. I don't like really closeness with opposite genders. I don't know why, or maybe I know why. So what happens is that मेरे को ना स्कूल में ऐसे मैंने कुछ किया ही नहीं था. मेरा जो भी क्लास नाइन्थ का मेरा सब कुछ चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, मैंने कोई क्लास अटेंड नहीं की थी, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने कोई वर्क बुक फिल नहीं की थी. तो मेरी जो हिंदी वाली टीचर थी मेरे सर पे चढ़ गई थी कि वर्क बुक दो, वर्क बुक दो, वर्क बुक दो. तो फिर उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया वर्क बुक देने के लिए. तो फिर मेरे को लिखना था. तो फिर मेरा कोई दोस्त नहीं था, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं किससे मांगूँ, किससे मदद मांगूँ. सो दिस बॉय हैड शेयर्ड हिज इंस्टाग्राम ID विथ माई ब्रदर. तो मैंने अपने भाई की ID से उसे मैसेज किया कि मैं इसकी बहन बोल रही हूँ और मुझे ये मदद चाहिए, तुम प्लीज़ भेज दोगे. तो उसने बोला मुझे कि इंस्टाग्राम पे क्वालिटी लो हो जाती है, तो फिर नहीं हो पाएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम नंबर दे दो, मैं तुम्हें भेज देता हूँ. एंड मैं मंदबुद्धि थी इंसान, मुझे अपने पापा का नंबर देना चाहिए था, बट मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं इडियट थी. मैंने अपना नंबर दिया क्योंकि मुझे लगा कि ही इज़ अ डिसेंट पर्सन, इडियट मी. तो मैंने उसे अपना नंबर दिया. एंड देन ही सेंडेड मी दोज थिंग्स. एंड फिर उसके बाद मेरा काम हो गया, मैंने वर्क बुक सबमिट करी, सब ठीक हो गया मेरा. एंड देन ही स्टार्टेड टू सेंड मी गुड मॉर्निंग, हाय 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 हाय, every after 2 hours, like after every 2 to 3 hours, half an hour, he used to send me good morning, good night, hi. And then I got so irritated with that, but I was in guilt that he helped me. So I initially did not complain or pointed out that don't do this. I did not set it the boundary and told him directly that I don't like this, stop messaging me. I did not, because I was so much into guilt that oh my god, he helped me. तो मैंने उसको बोला नहीं. फिर उसके बाद जब ऐसे ऐसे करता गया तो फिर मैंने कभी इग्नोर किया, कभी मेरे को लगा तो मैंने लिख दिया हाय. सो द हाई वुड कम एंड आई वुड इग्नोर इट, और कभी मैं हाय लिख देती थी. बट आफ्टर 10 to 15 days मेरा दिमाग ख़राब हो गया. मेरा एकदम पेशेंट लेवल जो मेरा था वो एकदम ख़त्म हो गया. तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई मेरी मम्मी मना कर रही है, मुझे नहीं बात करनी तुमसे, तो मुझे ये सब मत लिखो, मुझे हाय मत भेजो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं ब्लॉक कर रही हूँ, नहीं तुम ही मुझे ब्लॉक कर दो. सो आई सेड हिम. तो ही वाज लाइक मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं कर पाऊँगा, तुम ही मुझे ब्लॉक कर दो. एंड देन आई ब्लॉक्ड हिम. Obviously I would block him. Who would not block him? How creepy it is. So I blocked him and everything in that thing ended. उसके बाद मैं वैन में ही जाता था कभी कभार. हाँ बातचीत हो गई, कैसा चला, ठीक है, हाँ ठीक है. इनिशियल कन्वर्सेशन ही यूज टू स्टार्ट. आई नेवर वेंट देयर एंड सेड कि ये क्या, बिकॉज ही I did not find anything attractive or anything good in him. And those creepy things literally took over my mind and destroyed his reputation in my mind. So I knew that he's not somebody who is right to hold a conversation with him. So all these things happen and then सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. And उसके बाद then in my class 10th this boy comes and harasses one of my friend. He comes and harasses one of my friends, and he tells me that I have a feeling for her, could you please help me and tell her that we could be friends, I really like her, I like her since she was in 4th, I remember her wearing slippers and this and that, my love is really pure, this. And I was like बहुत गरी आएगी तुम्हें भैया, तुम उससे दूर रहो, बहुत गरी आएगी, बहुत बेइज्जती करेगी, पीटे जाओगे उससे. एंड देन लाइक मैं कुछ करना थोड़ा ना चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि हम दोस्त रहें, थोड़ी बहुत बातचीत हो. एंड आई लाइक मुझे नहीं पता, तुम दूर रहो. उसने एंड दिस गर्ल शी टोल्ड मी दैट इफ़ ही डज़ एनीथिंग, क्योंकि वो मेरे बहन में ही चाहता था, तो उसने मुझे बोला कि तुम इससे बोल दो कि मेरे से दूर रहे, नहीं तो मैं बहुत गंदा इसके साथ कुछ भी कह दूँगी इसको, फिर मुँह बना लेगा, ये मुँह बना लगे
मुंह बना लेगा यार। तो मैंने इसे बोल दिया कि भाई वो तेरे से बात नहीं करना था, तू इससे दूर रह, उसका पीछा छोड़ दे, उसे शांति से जीने दे। एंड देन उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद उसने फिर उसके बाद कट टू क्लास 12th, सब कुछ ठीक हो गया। मैंने बात करना उससे छोड़ दिया था, मैं बात नहीं करती बिकॉज आई गेट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। तो मैंने मतलब एकदम आई यूज्ड टू इग्नोर लाइक दिस। सो एक बार दिवाली पे, कुछ दिवाली की छुट्टी होने से पहले उस लाइक सबसे हाथ मिला रहा था, एंड देन ही केम टू मी एंड इज़ लाइक हैप्पी दिवाली। एंड लाइक if you know me, you know that how much I hate being touched by some random dude, especially boys. I like women touching me, girls touching me. I can kiss. Sorry, I should not be saying this. No, I don't mean in that way, but I can hug them, I can like give them a peek, but not with boys. I'm not comfortable, so I was like, I did not do anything. I'm like, thank you, but thank you. And I was like, after when we were at the end of my class 12th, things started to get ugly. He literally shouted in the class that, not shouted in the terms of shouted, he told all the boys of our class that he likes me. That was pathetic. So he has a crush on me. He told all of the boys of our class. Started to ship me, they started to call his name after me, they started to tease him, and that was so uncomfortable for me. I did not like that, I do not like that, but I tried to ignore because मैं कर भी क्या सकती थी, मैं जाके उससे बोलती तो फिर हो सकता है चीज़ें और अगली हो जाती। सो आई थॉट कि स्कूल ख़त्म ही होने वाला है तो भाड़ में जाओ भाई, मुझे क्या। But thing got more ugly when he posted a picture of mine on his Instagram story, and when somebody asked him that who is she, then he tell him that she is my girlfriend. I was a girlfriend of somebody and I did not know that. And that boy to whom he told that she's my girlfriend, she met one of my friend and he told that your friend didn't told you this, but she is having this. And my friend, she called me and asked me कि भाई ये बात है, and then she gave me the story जो लगा था उसका फ़ोटो उसने मेरे को भेजा, एंड मैंने देखा, एंड जैसे ही मैंने वो फ़ोटो देखा मेरे एकदम हाथ पैर एकदम काँपने लगे। नो अभी तो बहुत छोटी सी बात लग रही है, किसी की फ़ोटो लगा के किसी ने बोल दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड, इतनी छोटी बात है, बट इट वॉज नॉट। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, मेरी सांस रुक गई थी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था एकदम, मेरा एकदम रोने जैसा एकदम चेहरा हो गया था, मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो गया। मैं मतलब फिर मैं ऐसे ही मुँह बना के बैठी हुई थी कोने में, तो मेरी मम्मी आई, तो मेरी मम्मी को मेरा शक्ल देख के पता चल जाता कि क्या हुआ है, मेरे को कुछ हुआ है। तो शी वाज लाइक क्या हुआ है। तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो फिर मम्मी ने जब मेरे से पूछा कि भाई क्या हुआ है, बताओ सब, तो फिर मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया कि मम्मी ये बात है। इससे पहले भी मैंने मम्मी को बताया था इस लड़के के बारे में, क्योंकि जब मेरा नाम सारे बच्चे सारे लड़के क्लास के मुझे परेशान कर रहे थे, बेसिकली दे वर हरासिंग मी भाई, मेरे विल के अगेंस्ट, दे वर like using my name with somebody, that's so disgusting. So they were literally harassing me. So I had told my mom, and my mom also told me that होता रहता है, बच्चे हैं सब, ये सब होता रहता है, छोड़ो कुछ दिन की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बट वन शी गेट टू नो कि ऐसी चीज़ें हुई हैं, वो फ़ोटो वाला जो भी सीन था वो पता चल गया मेरी मम्मी को, मैंने बताया तो शी गॉट मैड। देन माई मम्मी गई पापा के पास एंड वी टोल्ड हिम एवरीथिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, वी टोल्ड हिम एवरीथिंग। देन माई फादर वॉज लाइक ओके लेट मी हैंडल इट। सो हमने उसके मम्मी का नंबर अरेंज किया कहीं से, उसकी मम्मी का जब नंबर हमने अरेंज किया, मेरे पापा ने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, एंड देन मेरे पापा ने उन्हें समझाया, बताया कि देखो भाई ये हो रहा है, फ़ोटो कहीं ये हमारे बच्चे की यूज़ कर रहा है, हमारे बच्चे को परेशान कर रहा है, काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा है, ऐसी चीज़ें ना हों, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें अगर ये कंटिन्यू करेगा तो फिर हम लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें बच्चों के, ये सारी चीज़ें बच्चे नहीं करने चाहिए, ऐसे किसी को परेशान करना सही नहीं होता है, आप प्लीज़ समझाएं अपने बच्चे को। तो मेरे पापा ने ऐसे उसकी मम्मी को समझाया, एंड उसकी मम्मी मानने को तैयार नहीं थी कि मेरा बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है। देन आई वाज लाइक मैं आपको प्रूफ भेज देती हूँ,
मैंने एक पार्ट मिस कर दिया बताना तुम लोगों को, कि जब मेरे को ये सारे बच्चे जितने भी क्लास में मेरे को टीज़ कर रहे थे, मेरे को परेशान कर रहे थे, मेरे को लिटरली हरास कर रहे थे, तब मैंने क्या लिया था, मैं चुप नहीं बैठी थी, मैंने तब भी कुछ किया था। आई रोट है, मैंने उसका नंबर अनब्लॉक किया एंड मैंने उसको एक पैराग्राफ लिखा और उसमें मैंने धमकाया था उसे। मैंने बहुत धमकाया था कि अगर तूने ऐसा 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 कुछ किया तो फिर मैं मैडम के पास जाऊंगी मेरे क्लास की, एंड फिर उसके बाद वही कुछ सब संभालेंगी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं खींच के ले जाऊंगी तुझे, सारा जो ये तेरा भूत है ना ये सारा मैं उतार दूँगी, ज़िंदगी भर पछताओगे तुम। और मैंने बहुत ज़्यादा हार्श लैंग्वेज का यूज़ किया था बिकॉज आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड। और ये मैं अपने हार्श लैंग्वेज के यूजेज पे मैं तुम्हें एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ, बट मैं तुम्हें रियली बता नहीं, इट्स नॉट कि बस उसके मेरे को मेरे क्लासमेट्स जो थे वो उसके साथ शिप कर, नहीं, ऐसा भी नहीं था। ही यूज टू स्टेयर एट मी, मतलब मैं ऐसे लिख रही हूँ कुछ भी एंड देन मैं इधर देखती हूँ एंड ही इज़ ऑलरेडी लुकिंग एट मी, ही इज़ ऑलरेडी स्टेयरिंग एट मी। I'm giving speech, I'm reading anything, I'm telling the answers, I'm questioning the teacher and he is looking at me. हाउ क्रीपी इट कुड बी कि तुम जब भी अपना सर उठाओ और कोई तुम्हें बस देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, और रोज़ यही हो रहा है तुम्हारे साथ। और मेरा इतने पे एकदम दिमाग मेरा ख़राब हो गया, तो मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, मैंने बहुत गंदा बोला उसको। मैंने आज तक इतनी बदतमीज़ी से किसी को कुछ भी नहीं कहा है। बट उसके बाद मेरे भाई को जब ये सब पता चला तो वो और भी गुस्सा हो गया। ऑफ कोर्स ही इज़ अ ब्रदर, ही इज़ अ बॉय, तो उसकी बहन को कोई कैसे परेशान कर रहा है, तो वो मैनली वो आ गया उसके अंदर। ऐसी लैंग्वेज का मैंने यूज़ किया था, मेरे भाई ने उससे 10 गुना ज़्यादा घटिया लैंग्वेज का यूज़ किया था। उसको मैसेज करने में मेरे भाई ने 10 गुना ज़्यादा घटिया लैंग्वेज का यूज़ किया था एंड आई एम अशेम्ड ऑफ दैट कि मेरे भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, गाली वाली नहीं दी थी, बट उसे ही लिटरली बॉडी शेम्ड हिम, ही डिड। सो आई अंडरस्टैंड ही वाज माई लिटिल ब्रदर। सो एक तो वो लड़का इससे एज में बड़ा है और वो मुझे परेशान कर रहा है, तो ये जाके उसको कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, तो फिर ये क्या करता। तो उसने ऐसे किया एंड जो भी मैसेज था मैंने जो भी मैसेजेस थे उसका स्क्रीन, ये लड़का इतना गधा था कि उसने उन मैसेजेस का स्क्रीनशॉट लेके मेरे पूरे क्लास में फैला दिया। मेरे पूरे क्लास को पता है कि इसने इसे ये मैसेज किया था। मेरे पूरे क्लास को पता है कि एक लड़की ने इसे गाली दी है, एक लड़की ने इसे इतना गंदा कुछ बोला है। मेरे पूरे क्लास को पता चल गया, मेरे पूरे क्लास को पता चल गया कि इसके पापा ने इसकी मम्मी को फ़ोन करके धमकाया है। मेरे पूरे क्लास को पता चल गया ये इतना गधा इडियट इंसान है कि अपनी इज्जत की खुद नीलामी कर रहा था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड दैट आई टुक अ राइट डिसीजन टू डू दिस, बिकॉज जिस इंसान को खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं पड़ी है भैया, वो मेरा क्या हाल करता अगर मैं नहीं एक्शन लेती तो। ही माइट हैव गॉन फार बियॉन्ड। सो इतना सब होने के बाद चीज़ें तो बहुत हद तक नॉर्मल हो गई, बट मेरे क्लास में रैंडमली कोई बच्चा आके मेरे से पूछता कि तुमने क्या लिखा था उसको, तुम्हारे पापा ने उसको फ़ोन किया था क्या। तो ये सब हो गया। उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई थी और ये सब एंड होते होते मेरा फेयरवेल हो गया था। तो फिर जब मेरा फेयरवेल हो गया तो फिर एग्ज़ाम दिया हमने, बात ख़त्म। एग्ज़ाम के बाद सब कुछ ख़त्म। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, कहीं और क्या कहता है, किससे क्या कहता है, बट मेरे पूरे क्लास में परसेप्शन बन गया था कि कितनी घटिया है ये। नहीं घटिया नहीं, बट दिखने में कितनी मासूम है, और ये ऐसे ऐसे किसी को ऐसे बोल सकती है, ये भी बोल सकती है, इतनी मासूम है, ये ऐसे भी बोल सकती है किसी को। सो अब मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून है। आई स्टिल डोंट टॉक टू एनी बॉय, एनी मैन, आई डोंट कीप टच विथ एनीबडी। I'm so scared, I'm so afraid, I'm not ready for anything. So अब सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है एंड आई होप तुम लोग की भी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। और अगर तुम्हारे पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई वुड लव टू हियर एंड लिसन दैट। एंड तब मिलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे विद अनदर स्टोरी, अनदर थिंग। तब तक के लिए बाय बाय।